Again in new episode. In this session we will talk about the reproductive health of human beings. Let's have to our topic, reproductive health, right? The state of complete physical, mental and social well-being regarding reproductive systems. As we know, reproductive system is not for only the production of new offspring. We have to maintain the reproductive health. We have to keep our reproductive systems hygiene and disease free, especially sexually transmitted disease ना हो. Sexually transmitted disease क्या है? Disease that can spread by sexual contact between male to female or female to male. Maybe also these disease can be also spread particular in a pregnant women from mother to their child. इस कंडीशन में यहाँ हो गया, right? So what is the motto behind this topic, reproductive health? First, to keep the STDs free, to keep the hygiene body, डिजीज फ्री रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हमें फ्री रखना है. नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है. नॉट ओनली फॉर टू स्टॉप द टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, these contraceptive methods, some of contraceptive methods can be used to control the spreading of STDs, sexual transmitted disease को spread होने से भी रोक सकती है. Small family concept, right? Family planning, gap between two child. These are the main purpose of using of contraception. First of all, STD. What is STD? As you know, disease that can spread by sexual contact, that call STD, sexual transmitted diseases. फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं इसकी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड diseases. These are the different diseases, common diseases. Syphilis caused by Treponema pallidum bacteria. Gonorrhea caused by Neisseria gonorrhoeae. AIDS, HIV, human immunodeficiency virus. Hepatitis B, hepatitis virus. And genital warts is caused by herpes virus. These are all STDs. These are all sexually transmitted disease, can spread through the sexual contact, right? Earlier diagnose in disease का कर लिया जाए तो बेसिकली पॉसिबल है, इससे होने वाले सिम्टम्स को कवर किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट डायग्नोस किए जाने की पोजीशन के अंदर बॉडी में इसका स्प्रेडिंग इतनी तेजी से होता है कि जब तक ये पता चलता है तब तक बॉडी के अंदर इसके सिम्टम्स और इतने वास्ट और डेंजरस हो जाते हैं कि वो उस कंडीशन में क्योर नहीं किए जा सकते हैं. 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे डिजीज हैं, स्टडीज है, दैट नॉट कैन बी क्योर इन एनी केस ऑफ इन एनी कंडीशन, राइट? तो सिम्टम्स इनके जो स्टार्ट होते हैं वो जनरल सिम्टम्स हैं. इन जनरल सिम्टम्स को देखते हुए पर्टिकुलर हमें अवेयर होना जरूरी है. हालांकि दीज आर नॉट सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रिगार्डिंग टू द एसटीडीज, बट ये जनरल सिम्टम्स क्या है? इचिंग, इन्फ्लामेशन, fluid discharge from genital parts or sexual parts, irritation in a pelvic region and wound and bleeding and sterility. बहुत लंबे टाइम तक इनकी पर्टिकुलर बॉडी में इन एसिडीज की रहने से हो सकता है एम्पोटेंसी आ जाए, मेल स्टेरिलिटी हो सकती है, फीमेल स्टेरिलिटी हो सकती है, नॉट एबल टू परफॉर्म फर्दर सेक्सुअल एक्टिविटीज लाइक प्रेगनेंसी, स्पर्म फॉर्मेशन. These all are the side effects of these STDs. Sterility को तो STDs से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हमें हाइजीन एटीट्यूड और हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी. प्रॉपर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक कॉन्डम्स का यूज करते, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करते टाइम कॉन्डम्स का यूज करना जरूरी है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, contraception method, the method to avoid unwanted pregnancy
also used to prevent or protect from STD transmission. So what is contraception? Method to avoid unwanted pregnancy. These are the different methods which are used for contraception. First, barrier method. Condoms को use किया जाता है. What is condom? Latex and rubber sheet which wear on penis or in vagina or cervix before going to coitus. Condoms are two types, male condoms and female condoms. पर जनरली जो condoms यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं male condoms. So male condoms are rubber sheet or latex sheet which wears generally on penis or cervix in a female, right? So condoms not only used for contraception, these condoms can be used to stop the transmission of STDs. STDs से बचने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है. So condoms are barrier method. Why? Because they create a barrier. They create the barrier in the passage of sperm and ova. Sperm और ova के barriers बीच में बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से sperm और ova आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, राइट? केमिकल मेथड. फर्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसके फ्यूजन से मिलकर बनी होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाली पिल्स ओवरी की जो मेंसेस साइकिल्स होती है उसको अनसुटेबल कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी ना हो. सेकेंड है आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये कॉपर की बनी होती है. कॉपर फिलामेंट्स होते हैं. टी शेप के कॉपर फिलामेंट्स को कॉपर टी बोला जाता है. सेवन शेप के भी कॉपर टीज होते हैं, जिनको है वो मल्टीलोड 7 भी कहते हैं, राइट? तो कॉपर 7, कॉपर टी, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ कॉपर आयन. ये कॉपर फिलामेंट कॉपर आयंस को रिलीज करता है जो स्पर्म्स को किल कर सकते हैं, तो सप्रेस करने का काम करेंगे. Suppress the motility of sperm. They also used to kill the sperm. किसमें वियर किए जा रहे हैं? तो आईयूसीडीज और कॉपर टीज किसमें वियर किए जाते हैं? ये सर्जरी के थ्रू यूटेरस में प्लांट किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिनके इफेक्ट लोकल होते हैं. दे रिलीज कॉपर आयंस एंड डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस which reacts to kill or suppress the sperm. Entered sperm को kill करने में यूज किए जाते हैं. और पिल्स जनरली फीमेल्स लेती हैं. पिल्स एमसी के 5th डे से लेकर नेक्स्ट 21 डेज तक ली जाने वाली पिल्स बेसिकली ओवरी से मेंसेस को अनसुटेबल कर देती है, जिससे सुटेबल कंडीशंस क्रिएट ना हो फॉर इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी. थर्ड है सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड. सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है वो स्टेरिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है. ये परमानेंट मेथड है. वेसेक्टोमी इन अ मेल स्टेरिलाइजेशन एंड ट्यूबेक्टोमी इन अ फीमेल स्टेरिलाइजेशन. बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, दीज आर रिवर्सिबल मेथड्स which can be reused to create to allow the pregnancy को अलाउ करने के लिए वापस इनको रिवर्स किया जा सकता है. तो बैरियर मेथड और केमिकल मेथड्स आर रिवर्सिबल मेथड्स. these are not permanent, these are temporary methods, right? तो ये हो गया. सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड तो वो परमानेंट है. वेसेक्टोमी, the small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision to prevent release of sperm from testes. आपने देखा था स्क्रोटम. स्क्रोटम में क्या था? टेस्टिस. टेस्टिस से क्या निकल रहा है? वास डेफरेंस. जो वास डेफरेंस निकल रहा है उसके स्मॉल पोर्शन को काट दिया जाता है और फ्री एंड को टाइड कर दिया जाता है. इस तरह ये टाई कर दिया. तो दिस इज वास डेफरेंस. सो स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस, ये स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड. ये टाइड कर दिया फ्री एंड थ्रू द स्मॉल इंसिजन. प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम. तो टेस्टिस से बनने वाले स्पर्म आगे नहीं जाएंगे. ये प्रिवेंशन हो गया, राइट? नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी कॉल मेल स्टेरिलिटी और मेल स्टेरिलाइजेशन. ये मेल के अंदर हो रहा है. नेक्स्ट, फीमेल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी.
small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision to prevent release of ova from ovary. ovary से जो ओवा रिलीज होता है वो प्रिवेंट कर दिया जाएगा। तो ओवरी हो गई, उस ओवरी के चारों तरफ क्या मौजूद है? फैलोपियन ट्यूब का सिंगल एग प्रोजेक्शन पार्ट है, दैट्स कॉल्ड इन्फंडिबुलम बोला था। ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है और इसके हिस्से को टाई कर दिया जाता है। इस तरह से ओवरी से रिलीज होने वाले ओवा इस गैप की वजह से ब्लॉकिंग हो गई। एक तरह से ओविडक्ट की ब्लॉकिंग यहां हो रही है और वहां वास डिफरेंस की ब्लॉकिंग हो रही है। वहां पर ब्लॉकिंग होने से स्पर्म से टेस्टिस से रिलीज होने वाले स्पर्म्स हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, और यहाँ ब्लॉकिंग होने से ओवरी से निकलने वाले ओवा ओविडक्ट से यूटेरस में नहीं आ पाएंगे। तो दैट विल बी द प्रिवेंशन फ्रॉम टू रिलीज द ओवा फ्रॉम ओवेरी टू रिलीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस लाइक दिस। इस तरह से ये परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड हो गया। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। लाइक दिस हमने फिनिश कर दिया है चैप्टर 8। हमने क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट एपिसोड में इंट्रोडक्शन किया, पूरा चैप्टर का पोर्शन ले लिया था, वो जरूरी है, सबसे पहले उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एपिसोड सेकंड के अंदर हमने किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट हमने 6 मोड्स पढ़े, डिफरेंस के साथ हमने उनके अंदर है वो स्पेशलाइजेशन और जनरल एस्पेक्ट पढ़े हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या खास बात होती है। उसके बाद पढ़ा हमने सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर हमने सबसे अट्रैक्टिव पार्ट बनाया था उसका फ्लावर, उसके पार्ट्स बनाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट एक फ्लावर के होते हैं। दोनों पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड और फ्रूट्स बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनसे बनने वाले गैमेट्स को फ्यूज करवाया फैलोपियन ट्यूब में और उसके बाद फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन करवा दिया फॉर देयर फर्दर डेवलपमेंट एंड नॉरिशमेंट। बाय विच पोर्शन? यूटेरस लाइनिंग। कौन सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है? प्लासेंटा। प्रोसीजर क्या है? इम्प्लांटेशन। उसके बाद पढ़ने इसके इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में कौन से प्रोसीजर हो रहा है, मेल में कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, कौन सी स्टेज है जिसमें पुबर्टी कहते हैं, कौन सी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली मिनार्की क्या है, मीनोपोज क्या है और पार्चुरेशन क्या है, ये सारे के सारे मेथड पढ़ने के बाद लास्ट आपका एपिसोड हुआ था आज वाला, जिसके अंदर एसटीडीज पढ़े, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और उसके बाद पढ़ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड केवल प्रेगनेंसी अवॉइड करने का तरीका नहीं है, फॉल फैमिली कॉन्सेप्ट अचीव करने का तरीका है, गैप बिटवीन 2 चाइल्ड करने का तरीका है, एसटीडीज को स्प्रेड होने से रोकने का तरीका है। दीज आर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आपका वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड होगा, नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 9। तब तक आप अपने रिवीजन प्रॉपर्ली कीजिए। कीप योर रिवीजन रेगुलरली एंड प्लीज जितना भी पढ़ लिया गया है उसको अच्छे से कवर कीजिए, वर्कशीट्स वगैरह अच्छे से कवर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।